Next colligative property is elevation of boiling point. And as you know, colligative property are the properties which depends on the number of solute particle, not on the nature of solute particle. So elevation in boiling point में first of all we need to understand what is boiling point. As I have already explained you, the boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the solution becomes equal to the atmospheric pressure. You can read it here. The boiling point is the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. ठीक है. अब क्या होता है when there is a non-volatile solute is added in the volatile solvent. As you know that non-volatile solute cause the relative lowering of vapor pressure because it covers the surface and is itself is non-volatile. So ultimately the vapor pressure of the solution is decreased, and in order to now if it has to boil, it has to make the vapor pressure of the solution equal to the atmospheric pressure. So in order to make the solution boil, its vapor pressure must be increased by raising the temperature. तो हमें temperature बढ़ाना पड़ेगा so that the vapor pressure of the solution becomes equal to the atmospheric pressure. So it must be increased by raising the temperature above the boiling point of the pure solvent. The difference in the boiling point of the solution, that of the pure solvent, ये गलत लिखा गया है, solution is TB and solvent is T0B. जहाँ ये not लगता है, this is for the pure component, तो that is called elevation in the boiling point. For example, you have water. As you know, water boils at 0 degrees centigrade. 100 degrees centigrade. So when you are adding salt in it, you will find that the solution of salt and water, the temperature at which this solution is going to get boiled is more than 100 degree, like 100.08 or something like that, right? So that increase in the boiling point is called elevation of boiling point. And why the solution has raised the boiling point? Because of the addition of the non-volatile solute, the vapor pressure of the solution has decreased. So to make the vapor pressure of the solution equal to the atmospheric pressure, temperature is been raised. I hope this much is clear to you. हम टेम्परेचर को क्यों बढ़ाते हैं? ताकि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए एंड द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग. You can understand this by looking at the graph. This is the graph of vapor pressure versus temperature in Kelvin. Now this is a plot of solvent. At this point the vapor pressure becomes equal to 1 atm. इस टेम्परेचर को जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जाकर के 1 atm के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर ये लिक्विड बॉईल करना शुरू करेगा. इसे हम T0B से इंडिकेट करते हैं बिकॉज दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. बट नाउ इफ़ यू हैव एडेड एनी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सो नाउ बिकॉज द वेपर प्रेशर हैज़ डिक्रीज्ड, यू कैन सी द वेपर प्रेशर. पहले वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा था, ठीक है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये ज़्यादा है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, ठीक है. तो ये धीरे धीरे हम देखेंगे कि अगर हमको उसको इस पॉइंट पे लेकर आना है तो हमको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा. जब यहाँ पे ये पहुँचेगा तो ये 1 atm के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे ये सॉल्यूशन बॉईल करना शुरू करेगा.
इस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट बॉईल कर रहा था, इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉईल कर रहा है, तो द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन देम इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा टी बी. दिस इज़ यू कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए टेम्परेचर को रेज करना पड़ता है. सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी. For a dilute solution, it has been observed that elevation of boiling point is directly proportional to the molar concentration of the solute. मोलल कंसनट्रेशन मतलब कि हम जितना ज़्यादा सोल्यूट की मोलालिटी रखते हैं उतना ज़्यादा इसमें एलिवेशन आता है. मोलालिटी इज़ अ टर्म बाय विच वी कैन एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. सो इफ़ वी आर एडिंग मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी हायर, सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विल बी ऑल्सो greater. So we can write delta TB is directly proportional to m, small m, where small m stands for molality. So removing the proportionality sign, we can keep a constant, that is Kb. Kb is called molar elevation constant or ebullioscopic constant. Now how can you define what is Kb? Kb is equal to the elevation of boiling point when the solution's molality is 1 mole per kg, right? So as you know, molality, the definition of molality is number of moles of solute divided by mass of solution. इन kg है तो ठीक है, अगर इन ग्राम है तो आप इंटू 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अब आप नंबर ऑफ़ मोल्स को आप ओपन कर देते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, दैट इज़ मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, एंड मास ऑफ द सॉल्यूशन को हमने, सॉरी सॉल्वेंट है, इट इज़ नॉट सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्वेंट को हम डब्ल्यू ए लिखेंगे. अगेन आई एम राइटिंग एन को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और दिस इज़ द मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000, राइट. तो ये आपका बन जाता है इक्वेशन फॉर मोलालिटी. नाउ यू कैन राइट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए. तो जैसे हमने इसके केस में इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया था, रीअरेंज किया था फॉर एम बी, सिमिलरली हेयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन फॉर एम बी, एंड जनरली जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें वी विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट. यू कैन सी this thing. Delta TB is equal to KB into WB into 1000 upon MB into WA, and similarly MB के लिए हमने इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया. नेक्स्ट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. दिस इज द अनदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? Freezing point is the temperature at which the vapor pressure of the substance in the liquid phase is equal to the vapor pressure in the solid phase. जब liquid phase और solid phase दोनों का vapor pressure बराबर आ जाता है तो हम लिख सकते हैं vapor pressure in liquid phase becomes equal to vapor pressure in solid phase. When these two vapor pressure becomes equal, at that condition or at that temperature, liquid solidifies. A solution freezes when its vapor pressure equals the vapor pressure of the pure solid. अब कोई भी सॉल्यूशन को अगर हमको फ्रीज करना है तो उसका जो वेपर प्रेशर है दैट मस्ट बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट. The reason is solute is not participating, only solvent is participating. As you know, solute is non-volatile. तो जब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सोल्यूट के सॉलिड सोल्यूट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे जा कर के आपका जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज़ होता है. सो जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक वाटर freezes at 0 degree centigrade
सो जो आपका वो होगा सॉल्ट प्लस वाटर, तो हमको उस वी हैव टू ब्रिंग दिस वट एवर इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ आइस at 0 degree centigrade, pure ice at 0 degree centigrade, we have to bring the vapor pressure of salt and water to that level जहाँ पे हमको सॉलिड आइस का वेपर प्रेशर मिलता है. जैसे आप इस ग्राफ को देखो, अंडरस्टैंड दिस बाय द ग्राफ, सी है दिस इज़ दी वेपर. अब देखो सॉलिडिफाई होने के लिए हमको कंडेंस करना होता है, यू कैन से कंप्रेस करना होता है. व्हेन यू आर कंप्रेसिंग द वेपर प्रेशर इज़ डिक्रीजिंग. सो लिक्विड सॉल्वेंट है, इसका ये वेपर प्रेशर है एट गिवन टेम्परेचर. अब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, इसको ठंडा कर रहे हो, तो ठंडा करने से वेपर प्रेशर इसका कम होगा. इस पॉइंट पे जा कर के ये फ्रोज़न सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर है. गर्म, हम फ्रोज़न सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, दिस साइड द टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग, राइट. तो ये ऐसे बढ़ता बढ़ता जा कर के जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इक्वल हो गए, यहाँ पे इस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर जो होगा, जो कि फ्रोज़न सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट दोनों का इक्वल आ गया है, यहाँ पे आपका लिक्विड जो है वो फ्रीज़ हो जाता है. तो हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, T0F. नाउ सॉल्यूशन की बात करो, सॉल्यूशन में अगर आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम हो गया, तो यू कैन सी सॉल्वेंट से पहले ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है. नाउ यू आर डिक्रीजिंग इट, तो ये एट अ लोअर टेम्परेचर ये जा कर के इससे मैच कर जाएगा. ये हायर टेम्परेचर पे मैच कर रहा है, ये लोअर टेम्परेचर पे करेगा. रीज़न इसकी फ्रीजिंग, इसका ऑलरेडी वेपर प्रेशर कम है. So it will freeze at TF. This is the vapor pressure of the solution when meet to the vapor pressure of the frozen solvent. So this is your TF. This is the vapor pressure. This is the freezing point of the solution. Original ये था, ये आपका solution का है. तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो डेल्टा TF कहलाता है. And this delta TF is called depression in या depression of freezing point. ऑलवेज़ रिमेंबर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसलिए आया है क्योंकि दोनों कंडीशंस में वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है जब हम सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करते हैं, और वेपर प्रेशर के डिक्रीज़ होने से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, वेयर एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है. So now whenever a non-volatile solute is added to the volatile solvent, the vapor pressure decreases and it would become equal to the solid solvent at a lower temperature. So the difference in the freezing point of the pure solvent, that is T0F, and that of the solution, that is TF, is known as the depression in freezing point. Thus the equation will be delta TF is equal to T0F minus TF. So it is again जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट के केस में किया, डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, उसी तरह से डेल्टा टी एफ इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम. मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इफ़ यू आर एडिंग, देन मोर इज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. तो रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन वी कैन गेट अ कॉन्स्टेंट दैट इज कॉल्ड के एफ. के एफ इज़ कॉल्ड मोलर डिप्रेशर कॉन्स्टेंट और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. And again you can define KF as जब molarity of the solution is 1 mole per kg, then the depression in freezing point is equal to molar depression constant. Now again they have expanded molality in the same way we have done. Molality is equal to number of moles upon mass of the solvent into 1000. Number of moles has been expanded. Then delta TF is equal to KF, और ये हमने M के लिए equation लिख दी. Then we have rearranged it to MB. सो यहाँ तक आपको इक्वेशन याद करना है. अगेन दिस कैन बी आस्क्ड कि ये दोनों क्यों, ये एंड द बॉइलिंग पॉइंट वाला, ये दोनों कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हाउ कैन यू से दिस. सो यू कैन ऑलवेज से बिकॉज बोथ ऑफ देम डिपेंड्स ऑन मोलालिटी एंड मोलालिटी इज़ अ टर्म विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स. सो अल्टीमेटली दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल, hence they are colligative properties.